ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اسد سبحانی اور میں ہوں ہیرا جاوید۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کا 13 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ نیب حکام کی جانب سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر نیب کی جانب سے شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی، جس کو عدالت نے منظور کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے شہباز شریف کو دوبارہ 13 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق سے۔ جی علی طارق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر کو دوبارہ 13 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے جسمانی ریمانڈ کی منظوری دی۔ نیب حکام کی جانب سے 14 روزہ جسمانی جو ریمانڈ تھا کی سزا کی گئی تھی۔ شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ نیب نیازی گٹھجوڑ کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا۔ میں نے کل ہائی کورٹ میں بھی 5 دستاویزات سامنے رکھی۔ ہم نے پنجاب میں گنے کی قیمت کم نہیں کی، میں نے کاشتکاروں کو نقصان نہیں بتایا، یہ سب کہنا تھا میاں محمد شہباز شریف کا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قائد اقبال شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت نے سیکورٹی کے ساتھ انتظامات کے سڑک کو بیریئر اور خاردار تارے لگا کے بند کر دیا گیا تھا، جبکہ پولیس اور رینجر کے اہلکاروں کی بڑی تعداد جو تھی عدالت میں بھی تعینات تھی اور عدالت کے باہر بھی تعینات تھی۔ جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا۔ میں نے ہائی کورٹ میں 5 دستاویزات سامنے رکھیں۔ ہم نے پنجاب میں گنے کی قیمت کم نہیں کی، میں نے کاشتکاروں کو نقصان نہیں پہنچایا، سرکاری خزانے کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا، بچوں کے ملز کو بھی سرکاری سبسڈی نہیں دی۔ سماعت کے دوران وکیل امجد پرویز کی جگہ شہباز شریف نے خود دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے والد کے اثاثے ہمارے جلا وطنی میں تقسیم ہوئے۔ جب میں پاکستان آیا تو اپنے اثاثے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ میرے آفس ہولڈر ہونے کی وجہ سے مجھ پر الزام ہے کہ میرے بچوں کے پیسے بڑھے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ 2017 میں حکومت پنجاب مجھے چیف سیکرٹری کے ذریعے سمری بھیجتی ہے۔ مجھے کہا گیا کہ چینی کو اب ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور حکومت 15 روپے چینی پر سبسڈی دے۔ میں نے چیف سیکرٹری کو لکھا کہ 15 روپے سبسڈی نہیں دوں گا۔ میں نے معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجنے کا کہا۔ دسمبر میں وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ فی کلو پر 10 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ بھی سبسڈی دے دیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے اس اقدام سے میرے بیٹے کو 90 کروڑ کا نقصان ہوا۔ عدالت نے شہباز شریف سے استفسار کیا کہ بتائیں کہ خزانے کو کتنا فائدہ ہوا، جس پر شہباز شریف نے کہا کہ جج صاحب خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا، یہ سب ریکارڈ پر موجود ہے۔ اربوں روپے بچا کر صحت اور تعلیم کے شعبوں میں لگایا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شائف خاقان عباسی کو نیب راولپنڈی نے طلب کر لیا۔ شائف خاقان عباسی کو ایم ڈی منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تعیناتی کیس میں طلب کیا گیا۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر ہمارا رد عمل آئے گا اور ہمیں استعفوں کی قربانی دینی ہوگی۔ نواز شریف اور ہمارا بیانیہ ایک ہے اور حکومت اپوزیشن سے ڈری ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شاہد حقان عباسی کی جانب سے رد عمل آیا ہے۔ شاہد حقان عباسی کو نیب راولپنڈی نے طلب کر لیا۔ شاہد حقان عباسی کو ایم ڈی منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تعیناتی کیس میں طلب کیا گیا۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر ہمارا رد عمل آئے گا اور ہمیں استعفوں کی قربانی دینی ہوگی۔
नवाज शरीफ और हमारा बयानिया एक है और हुकूमत अपोजिशन से डरी हुई है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, प्रोसिक्यूशन शहबाज शरीफ पर इल्जामात साबित करने में नाकाम हुआ। हम जमातों से मिलकर हुकूमती हरबों को शिकस्त देंगे। 25,000 सफात की बात करने वाले सिर्फ एक गवाह ला सके। हमें जमातों से मिलकर हुकूमती हरबों को शिकस्त देना होगी। नवाज शरीफ को कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोलने से रोक नहीं सकता। वो हमारे कायद हैं। पाकिस्तान के आवाम पर मुश्किल वक्त है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद राना सनाउल्लाह की जानिब से रद्द अमल दिया गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, प्रोसिक्यूशन शहबाज शरीफ पर इल्जामात साबित करने में नाकाम हुआ। आपको बताएं कि नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन शहबाज शरीफ पर इल्जामात साबित करने में नाकाम हुआ। हम जमातों से मिलकर हुकूमती हरबों को शिकस्त देंगे। 25,000 सफात की बात करने वाले सिर्फ एक गवाह लाएं। हम जमातों से मिलकर हुकूमती हरबों को शिकस्त देंगे। नवाज शरीफ को कोई कुछ भी बोलने से नहीं रोक सकते। वो हमारे कायद हैं। पाकिस्तान के अवाम पर मुश्किल वक्त चल रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ को पकड़ा गया। रेफरेंस दायर होने के बाद अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि गिरफ्तारी की ये लहर शहबाज शरीफ का खौफ है। नून लीग का डर और एपीसी का जो खौफतारी है उसी की वजह से है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2018 की तरह इंजीनियरिंग करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ का कसूर बस इतना है कि उन्होंने शीन नहीं बनाई। ये बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी सजा मिलनी थी। तमाम तर हरबों के बावजूद पार्टी मुस्तहकम है। जब चराग बुझने वाला होता है तो वो टिमटिमाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं, मुल्क में फाशिज्म के इंतहा है। चंद लोगों का गठजोड़ मफाद के लिए नुकसानदेह है। ऐसी फजा पैदा कर रहे हैं जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। के बाद ऐसे जो इक़दामात हैं उनका पस मंजर क्या हो सकता है? इस तरह की मर्जी के पाकिस्तान में मामला को हैंडल कर रहे हैं और कोई मुझे तो कोई बज़ाहिर वजह नज़र नहीं आती कि मैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी क्यों उसकी ज़रूरत थी। काफ़ी अर्सा वो कस्टडी में थे नैब के। ये नैब और जो गवर्नमेंट की जो गठजोड़ है वो आपके सामने यहाँ है। और आपने जैसे फरमाया कि एपीसी के जो फैसले हैं जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के लिए, वो गालिबन उसी गठजोड़ जो चंद लोगों का है उनको सूट नहीं करते और वो एक किस्म के ये रिएक्शन के तौर पे ये इस तरह के हरबे हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मियां साहब तो कहते हैं कि हमारी जंग उनसे है जो इमरान खान को लाए हैं। तो ये एक हैंडफुल ऑफ पीपल है। देखिए, इस पे अदारे इन टोटलिटी नहीं होते, ये चंद लोग ही होते हैं और वो जो नेक्सस बनता है चंद लोगों का, वो फिर इस तरह का एक उनका अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट भी होता है और वो एक प्लान करते हैं। जैसे हमारी हुकूमत को टारगेट किया गया, मुस्लिम लीग नून को से इलेक्शन चोरी किया गया, हम इलेक्शन जीत रहे थे। तो अब तो सारी दुनिया देख चुकी है सारी चीजें। इधर आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। नैब से डरने वाले नहीं, आखिरी ऑप्शन इस्तीफे होंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गिरफ्तारियां मानी नहीं रखती। देखना है हुकूमत का मयार क्या है। अगर हुकूमती मंशूर पर अमल दरामद होता है तो अवाम मुतमईन होंगे। अगर लीडरशिप के बगैर कोई तहरीक होगी तो वो खतरनाक होगी। असेंबली छोड़ने का मामला आया तो फैसला तमाम जमातों का होगा। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। अगर हमारी कुर्बानी से मुल्क बेहतर हो सकता है तो हमें कोई मसला नहीं। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और कहा कि इंतकामी सियासत से मुल्क में इंतशार फैलेगा।
सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक्किद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की ओहदेदारों ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह इंतकामी सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, इससे सियासी इंतशार और बहरान जन्म लेंगे, जबकि मुल्क में पहले ही तरक्की का पहिया रुक चुका है। मुस्लिम लीग नून रियाद रीजन के सदर डॉक्टर सईद अहमद वीनस ने कहा कि जब से PTI हुकूमत में आई है, इंतकामी सियासत ने ज़ोर पकड़ा है। वो सुरखरू होंगे। हमें उम्मीद है, हम इस बात पे एहतजाज करते हैं कि ये जो नैब न्याजी गठजोड़ मुल्क में चल रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा? ये जुल्म और ज़्यादती कब तक होती रहेगी? ये ज़्यादती कब तक होती रहेगी? ये पाकिस्तानियत को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। ये पाकिस्तान की इकानमी को डुबो रही है। इनको और कोई काम तो आता नहीं, बस इस काम के पीछे लगे हुए हैं कि किस तरह मियाँ बरादरान को जो है ना वो इस पर्दा स्क्रीन से गायब कर दिया जाए। और ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले, मियाँ शहबाज शरीफ के चाहने वाले जिंदा हैं, आप ये कभी नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर महमूद अहमद बाजवा, मखदूम अमीन, ताजर मलक अहमद, हुसैन आबद भट्टी ने भी इजहार ख्याल किया और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत की। कैमरामैन अजमल के साथ राना अजीम, TV टुडे। भारतीय फौज के लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जी जारी है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सेक्टर बरो और टंडर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फायरिंग से खातून और 80 साल बुजुर्ग समेत 4 शहरी जख्मी हुए हैं। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से मुतल्लिक। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जी जारी है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने सेक्टर बरो और टंडर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फायरिंग से खातून और 80 साल बुजुर्ग समेत 4 शहरी जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि भारतीय जारियत का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में पाक फौज के बहादुर सिपाही जामे शहादत नोश कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा में कबाड़ी की दुकान में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाम बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। धमाका नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में वाक़या कबाड़ी की दुकान में हुआ। DPO नौशहरा नजमुल हसनैन के मुताबिक कबाड़ियों ने दराए काबुल के किनारे पड़े हुए पुराने बम और गोले उठाए थे। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास आज होगा। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया गया। शफकत महमूद कहते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसला किया। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, NCOC इजलास में तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम भी इजलास में शरीक थे। मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे प्राइमरी तालीम हासिल करते हैं। कल से मुल्क भर के प्राइमरी स्कूल्स खोलने का मुत्तफ़िका फैसला किया गया है। तमाम फैसले मुल्क भर से इकट्ठे किए गए, डेटा को जांचने और सूबों की राय लेने के बाद फैसला किया गया। शफकत महमूद का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतादिद स्कूल्स बंद किए गए। आइंदा भी SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटे बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं, उनके लिए मास्क पहनना और दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी की तब्दीली पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तैनाती एजेंडे का हिस्सा है। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के आइन की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास होगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अफगानिस्तान से मुतल्लिक वीज़ा पॉलिसी की तब्दीली पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तैनाती एजेंडे का हिस्सा है। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के आइन की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे में शामिल है।
स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद 651 अरब रुपए के कर्ज मौखर कर दिए गए हैं। 25 सितंबर तक 186 अरब रुपए के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई है। तनख्वाहों की मद में 217 अरब रुपए के कर्ज मंजूर किए गए हैं। अस्पतालों के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए के कर्जों की मंजूरी दे दी गई है। सरमायाकारी की गरज से 78 अरब के कर्ज दिए गए। स्टेट बैंक से 78 अरब के कर्ज दिए गए हैं। आपको बताएं कि स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। 25 सितंबर तक 186 अरब रुपए के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई है। तनख्वाहों की मद में 217 अरब रुपए के कर्ज मंजूर किए गए। अस्पतालों के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए के कर्जों की मंजूरी दे दी गई। सरमायाकारी के कर्ज से 78 अरब रुपए के कर्ज दिए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन इलाकाई तरक्की के लिए ज़रूरी है। हमें अमन अमल को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से खबरदार रहना है। हम अफगान मुहाजिरीन की इज्जत व वक़ार से वापसी के ख्वाहां हैं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमें माजी की गलतियों को भूल कर आगे बढ़ना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा सेमिनार से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में मफाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुज़ाकरात में अमन अमल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। खित्ते में अमन अफगानिस्तान में अमन से मशरूत है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ बहुत अहम कदम है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आलमी बरादरी अफ़गान मसले के सियासी हल की हिमायत कर रही है। इस बात का एतराफ़ हुआ है कि अफ़गान मसला मुज़ाकरात से हल होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहते हैं कि अफ़गान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम मसालती किरदार अदा किया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करता है। अपने अवाम की उमंगों के मुताबिक हमें नए मुस्तकबिल की जानिब देखना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा सेमिनार से चेयरमैन अफगान मफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला का कहना था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उभरते हुए नए मुस्तकबिल के मौका पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी से अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मौका है। अमन का क़याम दोनों ममालिक के लिए अहम है। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक में मज़ीद ताउन के मौक़े मौजूद हैं। अपने फ़वाइद और नुकसान से हमें सबक सीखना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खुशहाली एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। सियासी महाज पर हलचल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला से मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली ने राब्ता किया। उस्मान बुज़दार से गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद ग़यासुद्दीन, मोहम्मद फैसल खान नियाजी ने ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की। नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। लीगी मुंतखब नुमाइंदों ने उस्मान बुज़दार को अपने हलकों और इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ डॉलर्स कर्जे की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक ADB के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि मंजूर की गई रकम कैपिटल मार्केट में इस्लाहात के लिए दी गई है और यह मनसूबा निजी सरमायाकारी को फ़रोग देगा। इसके अलावा कर्ज प्रोग्राम से कैपिटल मार्केट के इस्तेदाद कार में भी इजाफा हो सकेगा। खबर शामिल करेंगे कमालिया से, जहां पर ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा पेश आया है। कार और ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कार चीचा बतनी से कमालिया आ रही थी कि हादसा पेश आ गया।
पुलिस के मुताबिक रावी पुल के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार उलट गई और इसमें सवार 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और जाँ बहक अफराद की लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जिनमें 2 खातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 10 घंटे तक पहुंच गया। सीएनजी स्टेशन को एलानिया और गैर एलानिया गैस की तरसील भी मुअत्तल हो गई है। शहरी कायद में बिजली का बहरान तीसरे हफ्ते भी जारी है और कराची को बिजली की फराहमी के लिए जिम्मेदार कंपनी के इलेक्ट्रिक ने 3 पावर प्लांट्स गैस की कमी के बायस बंद कर दिए हैं। शहरी कायद में बिजली की तलब और रसद में 500 मेगावाट का फ़र्क मौजूद है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी के बायस बिजली की पैदावार ताहाल मुतासिर है। सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जुमान का इस बाबत कहना है कि कराची इलेक्ट्रिक को मतलूबा मिकदार 190 मिलियन मकब फीट गैस पूरे प्रेशर के साथ फराहम की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं तालीम का फरोग इमरान खान का विजन है। वज़ीर आज़म ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। प्राइवेट सेक्टर की फरोग तालीम के लिए खिदमात तस्लीम करते हैं। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सर्विंग स्कूल्स और कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस से नए कानून साजी में मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई, जबकि सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब को निजी तालीमी इदारों के मसाइल हल करने का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीजों का इंतकाल, अम्बाद 6474 हो गई। मजीद 419 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 3,11,516 हो गए। 419 की हालत तशवीशनाक है। 2,96,340 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 672 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 99,292, सिंध में 1,36,395, खैबर पख्तूनख्वा में 37,727 और बलोचिस्तान में 15,177, गिलगित बल्तिस्तान में 3,730 अमवात हुई हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से 10,06,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 3,35,49,000 हो गई। दुनिया में कोरोना से मुतासिर 2,48,78,124 अफराद सेहतयाब हुए और एक्टिव केसेस की तादाद 76,65,370 है। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,09,880 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बताएं कि 73,61,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 61,43,000 से बढ़ गई है। भारत में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 46,351 हो गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की बीमारियों के मुतालिक आगाही और उनसे बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 29 सितंबर को दिल का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की बीमारी से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही और इनसे बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जबकि पाकिस्तान में होने वाली 1/3 अमवात दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं।
माहिरीन के मुताबिक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और ग्लूकोज का बढ़ना, तंबाकू नोशी, खुराक में सब्जियों और फलों का नाकाफी इस्तेमाल, मोटापा और जिस्मानी मुशक्कत का फुकदान दिल के अमराज में मुब्तला होने की बड़ी वजूहात हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक हल्की फुल्की सादा ग़िज़ा और दिन में सिर्फ आधे घंटे की वर्जिश को मामूल बनाकर दिल के बहुत से अमराज से बचा जा सकता है। सेमिनार, रैलियां और आगाही वॉक का इनेकाद किया। चेयरमैन टीवी टुडे ज़हूर भट्टू से नौजवान कॉलम निगार और मुसन्निफ सैयद मौसब गजनवी की लाहौर टीवी टुडे हेडक्वार्टर्स में मुलाकात, अपनी किताब बाबा कराची का तोहफा दिया। चेयरमैन टीवी टुडे ज़हूर भट्टू साहब से मुल्क के उभरते हुए नए मुसन्निफ व कॉलम निगार सैयद मौसब गजनवी ने लाहौर हेड ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में साबिक मेयर कराची और रहनुमा जमात इस्लामी नेमतुल्ला खान की हयात व खिदमात पर मबनी किताब बाबाए कराची का तोहफा भी दिया। ज़हूर भट्टू साहब का कहना था कि नेमतुल्ला खान साहब मेयर कराची और कराची को रोशनियों का शहर बनाने वाली शख्सियत हैं। उनकी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजरी। नेमतुल्ला खान ने मुल्क पाकिस्तान में एक आइडियल सियासतदान की हैसियत को मुतारिफ करवाया और अपनी आखिरी सांस तक मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की। बाबा कराची का लक़ब पाने वाले नेमतुल्ला खान की ज़िंदगी पर किताब लिखना नहायत अहमियत का हामिल है और इस तसनीफ पर सैयद मौसब गजनवी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने नहायत कम उम्र में यह कारनामा सर अंजाम दिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनिट बट ईदन के कारकुनान की बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रहनुमाओं ने नून लीग की मरकजी क़यादत मरियम नवाज की गिरफ्तारी की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इमरान हुकूमत पाकिस्तान की नाकाम और नाहिल हुकूमत साबित हुई है। अपनी नाहिली छुपाने के लिए मुखालिफ सियासतदानों को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर उन्हें अपनी सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। सक्खर में 6 माह बाद प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के बच्चों के स्कूल्स खुलने का दूसरा दिन है। पहले रोज की निस्बत आज हाजिरी भी काफी बेहतर दिखाई दे रही है और SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सक्खर से हमारे नुमाइंदे फैसल आराई से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल तवील अरसे की छुट्टियों के बाद जो है कोरोना वायरस ने जो है जिस तरह से माशी तौर पे मुल्क को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाया, उसी तरह से दूसरी जानिब जो है तालीमी तौर पर भी जो है वो शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। बच्चों को जो है वो तालीमी साल के अगर बात करें तो शदीद नुकसान भी हुआ है। लेकिन तवील अरसे की छुट्टियों के बाद आज स्कूल जो है दूसरा रोज़ है तालीमी से जो है आगाज़ हुआ है। छोटे बच्चे जो है वो प्राइमरी, प्री प्राइमरी, मिडिल क्लासेस के बच्चे जो हैं वो आज स्कूलों में बड़ी तादाद में हमें दिखाई दे रहे हैं। SOP की बात करूँ तो मुकम्मल तौर पर SOP पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। सैनिटाइजर, मास्क जो है वो बच्चों के चेक किए जा रहे हैं। 9 मास्क, 9 एंट्री के जो है वो पंफलेट और पैनाफ्लेक्स भी स्कूलों के बाहर आवेजा किए गए हैं कि जिस बच्चे के पास मास्क नहीं होगा उसे जो है स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मास्क और सैनिटाइजर चेक करने के बाद, टेम्परेचर चेक करने के बाद जो है वो बच्चे को स्कूल में दाखिल की इजाजत दी जा रही है। बच्चे भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तवील अरसे की छुट्टियों के बाद जो है नए बैग, नई किताबें, नए शूज और इसकी भी खुशी और साथ साथ ये भी खुशी है कि वो अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्त हैं और अपने असतिज़ा हैं उनसे भी आए अपने स्कूलों में जाकर तवील अरसे के बाद मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं एक निजी तालीमी इदारे में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो तालीम का बच्चों को जो सिलसिला जारी है। टीचर्स मौजूद है, एक बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बेटा बताएं कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में आप? 2 में। देखिए 2 क्लास में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 2 क्लास की बच्ची है और भी बच्चे बहुत हैं जो मौजूद हैं क्लास में, और वो बच्चों का भी यही कहना है कि आज जो है तवील अरसे की छुट्टियों के बाद स्कूल में आकर जो है वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं और उन्हें खुशी भी है कि उनकी तालीम का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया। जी बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे।